हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श इंग्लिश क्लास। और आज हम लोग एकलव्य विद्यालय शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को डील करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग दोनों टाइप के इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश एंड सब्जेक्टिव इंग्लिश पेपर 2 बोथ टाइप्स ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन को डील करेंगे। हमने सेपरेट के बजाय अटैच वीडियो बनाया है तो एक ही वीडियो में दोनों कवर अप हो सके। जनरल इंग्लिश की भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे और सब्जेक्टिव इंग्लिश का भी क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में डील करेंगे। इसलिए एक ही साथ एक ही वीडियो में हम लोग दोनों चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। सो लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड विथ सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड लेट्स ट्राई टू मास्टर ऑल ऑफ देम। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने आप लोगों से कहा है कि ये एकलव्य विद्यालय शिक्षक भर्ती की एक सीरीज़ है और इसमें एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज सेट अगेंस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द पोर्शंस ऑफ इंडिया एंड हैज़ एन अननेम्ड नरेटर हु एडमायर्स हिज अंकल त्रिदेव। You have to do answer and tell me what is the right answer for this question. You have 4 options. Such a long journey, the shadow lines, English August and same. What will be our right answer here? Guys, जब भी बात होती है अंकल त्रिदीप की तो इनके साथ हमारा राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, द शेडो लाइन। द शेडो लाइन is a Sahitya Academic Award winning novel by Indian writer अमित घोष। इस वर्क को साहित्य एकेडमिक अवार्ड मिला है और इनके राइटर अमिताभ घोष हैं। इट इज़ अ बुक दैट कैप्चर्स पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम एंड events of lines and that bring people together and hold them. So it is very important crucial work by Amitav Ghosh. Always you must keep on your mind. Let's move on to the next question. Who is the author of collection of critical essays The Perishable Admire? और इस वर्क के राइटर कौन हैं? You have 4 answer here. You have to do and you have to choose right answer. So here right answer will be option B. Option B. Meenakshi Mukherjee. Meenakshi Mukherjee is our right answer. And Meenakshi Mukherjee is an Indian politician from West Bengal and she is the state president of Democratic Youth Federation of India and the young wing of CPIM. So Meenakshi Mukherjee is our right answer here. Move on to the next question. J.M. Coetzee novel Foe is rewriting of. So guys, you have 4 answer here. You have to do right answer. So what is the right answer for this question? Our right answer will be option C, Robinson Crusoe. And when we are talking about J.M. Coetzee, John Maxwell Coetzee, he is a South American born novelist and not only novelist, essayist, linguist, translator and recipient of the 2003 and he got Nobel Prize in Literature. He is one of the most critically acclaimed and decorated author. So you must keep on your mind. Move on to the next question. Next question is which of the following novel by Raja Rao? Raja Rao is semi-autobiographical and modern rendering of the Mahabharata legend of Satyavan Savitri. And you have to choose particular work by Raja Rao. 4 answer here. You have to do right answer. Okay, now I tell you the right answer. So here our right answer will be option D. Option D. The Serpent and the Rope. And The Serpent and the Rope is Raja Rao's second novel. It was first published in 1960. पब्लिश्ड बाय जॉन मूरे। इसको जॉन मूरे ने पब्लिश करवा दिया था and it is written in autobiographical style. The novel deals with the concept of existence, reality and fulfillment of one's capabilities.
So you must keep on your mind that it is a work by Raja Rao. Move on to the next question. Okay, now our next question is, in which novel do you find the character Mruti, an idealist and supporter of Ahimsa and Satyagraha, who wants to cross the traditional barriers of caste? राइटर देखना है कौन यहाँ पे ट्रेडिशनल बैरियर ऑफ कास्ट की बात करते हैं. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी Kanthapura. Kanthapura will be our right answer. Kanthapura is the story of how Gandhi's struggle for independence from the British came to typical village Kanthapura, and it is published in 1938. You must keep on your mind. Move on to the next question. Our next question is, who wrote the famous trilogy The Village, Across the Black Waters and The Sword and the Sickle? Who is the writer? वो कौन से ट्रायोलॉजी थे जिन्होंने 3 वर्क लिखा है? द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल. सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, Mulk Raj Anand. The Village is a novel by Mulk Raj Anand and first published in 1939. And the book was the first of trilogy that included Across the Black Waters and The Sword and the Sickle. So the plot center of India's political structure, specifically the British rule and the independence movement. These all are very important work by Mulk Raj Anand. He is a very prominent writer of the 20th century. Okay, move on to the next question. Our next question is the autobiography of an unknown Indian. Unknown Indian is the autobiography of. Keep in your mind, unknown Indian पूछ रहा है. So here our right answer will be option A, Nirad C. Chaudhary. And it is a masterpiece, the autobiography of an unknown Indian, and it is published in 1951. Put him on the long list of great Indian writers. Chaudhary has said that the autobiography of the unknown Indian is more of existence and more of an exercise in descriptive ethology than autobiography. So he is a very famous writer of this era. Always you must keep on your mind. गाइस, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये सारे वेरी वेरी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. आगे बढ़ते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूर गाइड इन स्वामी एंड फ्रेंड, एंड हु बिकम्स द स्पिरिचुअल गाइड इन द नॉवेल द गाइड? द गाइड जो कि आर के नारायण की बहुत ही फेमस वर्क है और द गाइड पर मूवी भी बन चुकी है. वाहिदा रहमान और देवानंद की बहुत ही अच्छी नॉवेल है, बहुत ही अच्छी मूवी भी बनी हुई है. आप लोग चाहें तो देख सकते हैं. तो इस सवाल में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूर गाइड. जब आप इस वर्क को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वर्क में ऑप्शन डी, राजू का जो कैरेक्टर होता है वो यहाँ पे गाइड का काम करता है. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, राजू. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोएम गीतांजलि वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय. गीतांजलि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की एक कलेक्शन ऑफ पोएम है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम और इट इज पब्लिश्ड इन 1912. ये 1912 में पब्लिश हुई थी और इसी वर्क के चलते फेमस होने की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज और मिल चुका है और उनको प्राइज 1913 में मिला था इस वर्क के पब्लिश्ड होने के 1 ईयर बाद में. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर इज आवर राइट आंसर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pablo Neruda is a poet from. So you have 4 options. You can do right answer, please. Our right answer will be here option C, Chile. Move on to the next question. अब हम लोग ग्रामर की बात करेंगे. Now we will talk about grammar. So हमने कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के कल भी मैंने पुट अप किए थे एंड सम क्वेश्चन आज भी लेकर के आई हूँ. आई होप कि प्रीपोजिशन आप लोगों को अच्छे से आता हो. ये इनका डेफिनेशन है, प्रीपोजिशन का ये डेफिनेशन है, मैं आप लोगों के लिए लिख कर लाई हूँ.
और ये एग्जाम्पल्स हैं। सो नाउ आवर फर्स्ट सेंटेंस इज द वुल्फ sprang dash lamb. So what will be right answer here? Here our right answer will be option A, upon. Move on to the next. The fan is dash my head. So here our right answer will be option A, over. देखिए, जब भी कोई चीज़ ना ऊपर होती है तो वहाँ पे हम लोग ओवर पुट करेंगे। जैसे फैन जो है वो सर के ऊपर है, और जस्ट लाइक ब्रिज जो होती है वो वाटर के ऊपर होती है, तो वहाँ भी ओवर ब्रिज आपने सुना भी होगा ना, ओवर ब्रिज ऐसे कंसिडर किया जाता है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हिज परफॉर्मेंस इज डैश एवरेज. सो हियर आवर राइट प्रीपोजिशन विल बी ऑप्शन सी, बिलो. His performance is below average. Move on to the next. Our next sentence will be the sunset dash the horizon. Here our right answer will be option C, below. Move on to the next. Our next sentence is translate English dash Hindi. So here our right answer will be B, into. जब किसी को किसी की तरफ करते हैं ना, किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ की तरफ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इनटू करते हैं। नाउ कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया था। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे होमवर्क के तौर पे। आई होप कि आप लोगों ने किया हो, और मैं आज आपको बता देती हूँ इसका राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था द फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। सो जॉन ड्राइडन को रॉयल पोइट कहा जाता है, रॉयल पोइट, क्योंकि ये मोनार्की से संबंधित थे, ये बिलोंग करते थे मोनार्की से। इनकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो किंग के घराने से ताल्लुक़ रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टर इन गॉडविन्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज मेंटेन्स। सो विलियम गॉडविन की जो वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज मेंटेन्स, इसमें कैरेक्टर कौन सा है? इन 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस कौन सा है? सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पिगी। विलियम गॉडविन के वर्क में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज मेंटेन के वर्क में जो कैरेक्टर है वो पिगी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड चॉसर्स पार्डोनर मेक हिज लिविंग। सो हियर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय सेलिंग इंडल्जेंस टू दोज हु कमिटेड सिंस। एंड नाउ अब हम बात करेंगे आज के होमवर्क क्वेश्चंस की। तो आज भी मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस क्वेश्चन के साथ, और एंजॉय के साथ साथ अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को भी कवर कर रहे हैं। गाइस, होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि आप इस मैटर पे सर्च करेंगे, आज आप इस मैटर को कंसंट्रेट करेंगे ताकि आप अपने प्रिपरेशन को एक अच्छी मूड दे सकते हैं। सो यू हैव टू डू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। एंड नाउ आप लोग इस क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।